جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جمعۃ المبارکہ ہے، اور جمعۃ المبارکہ کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ اور شعبان المعظم بھی ہے کہ شعبان المعظم کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ بھی شعبان کا ہے، اور شعبان کے اس مہینے کو اللہ کے رسول سے نسبت حاصل ہے، اور جمعۃ المبارکہ بھی آج ہے۔ لہذا شعبان کے مہینے میں اگر کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے وہ میں سنا کے اپنی بات آگے کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے، اور اس دریا کا نام برکات ہے، اور اس دریا کے کنارے ایک درخت ہے، اس درخت کا نام تحیات ہے، اس درخت پر ایک مرغ ہے۔ شعبان کے مہینے میں جب بھی کوئی مسلمان درود پاک پڑھتا ہے سرکار پر، تو وہ مرغ اس درخت پر سے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو جتنے خطرے اس کے پروں سے نکلتے ہیں رب تبارک و تعالی ہر خطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور سارے نکلنے والے فرشتے، جتنے خطروں سے جتنے فرشتے اللہ پیدا فرماتا ہے، وہ سارے فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، درود پاک شعبان کے مہینے میں پڑھتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا اب جو بھی شعبان کے دن بچے ہوئے شعبان المعظم کے، اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب کہنا یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب والا ہر کام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے، لیکن وہی کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ لیکن مسلمان اگر کسی کام کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو وہ اس کا کام عبادت بن جاتا ہے، اللہ بے شمار ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بظاہر آپ سمجھیں گے یہ چھوٹی سی سنت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ معلومات بھی ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ نئی معلومات ہوں گے جس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ وہ سنت کیا ہے؟ پانی پینے کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جو ہے نا، تو پانی بھی اگر ہم پیتے ہیں سنت رسول کے مطابق پیتے ہیں تو یہ پانی پینا بھی عبادت بنے گا، اور اللہ بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہاں علماء فرماتے ہیں جو بھی ہم پیے، پانی پیے، دودھ پیے، چائے پیے، شربت پیے، لسی پیے، جو بھی حلال چیز ہم پیتے ہیں، پینے سے پہلے نیت کرے مولا یہ جو پی رہا ہوں میں، اس سے جو طاقت مجھے ملے گی میں اس سے عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، تلاوت کروں گا، یعنی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیت کی وجہ سے بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر نیک کام کی عبادت کی نیت بھی اگر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے صدقے میں بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پانی پیا کرے، جو بھی جائز چیز پی رہے اس کو پینے سے پہلے یہ نیت ضرور کر لیا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو پانی پینے کا سنت طریقہ جو ہے اس میں پہلی سنت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پانی پینا، سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑ کے پانی پینا ہے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ کے رسول تو مسلمانوں کو، اپنے امتیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، لیکن آج کا مسلمان، آج کا چاہے مسلمان نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کا جو بھی ہو، آج کا مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے غیروں کے فیشن پہ عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، غیر مسلموں کے، یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور بجائے سیدھے ہاتھ میں کے گلاس پکڑ کے پانی پینے کے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے چائے پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، اور وہ اس فیشن پر عمل کر کے خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے۔
میرے پیارے آقا सलाम के प्यारे दीवानों, एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो लोग बाएं हाथ से पीते हैं, जो भी जायज़ चीज़ पीते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं, उन्हें ये हदीस देख लेनी चाहिए, इबरत हासिल करें इस हदीस को देखकर। अल्लाह के रसूल हदीस मुबारक में क्या इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान दाएं हाथ से खाता है, दाएं हाथ से पीता है, और शैतान बाएं हाथ से पीता है और बाएं हाथ से खाता है। अब अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं, जो मुसलमान होगा वो सीधे हाथ से पिएगा, सीधे हाथ से खाएगा, और जो शैतान होगा वो बाएं हाथ से पिएगा, बाएं हाथ से खाएगा। अब हमें सोच लेना चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती मुसलमान हैं या शैतान के पैरोकार हैं। अगर मुसलमान होंगे तो सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए सीधे हाथ से पिएंगे, और अगर शैतान के पैरोकार होंगे तो शैतान की सुन्नत पर अमल करेंगे। मेरे प्यारे, अब खुश किसको करना है देख ले, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करके अल्लाह के रसूल को खुश करना है, या शैतान के तरीके पर अमल करके शैतान को खुश करना है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, और एक बात यह है, पानी गिलास में पीना भी सुन्नत रसूल है और प्याले में पीना भी सुन्नत रसूल है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन उलमा फरमाते हैं, ऐसा लोटा हो, जग हो या बॉटल हो जिसका जो अंदर जो पानी होता है बाहर से वो नजर नहीं आता, तो उसको लेकर डायरेक्ट मुंह को मत लगाएं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अंदर पानी में कचरा है, कीड़ा है, पतिंगा है, जरासीम जो भी है वो आपको नजर नहीं आते। अगर आप डायरेक्ट लेकर मुंह को लगा देंगे तो लिहाजा आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। लिहाजा मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे जीवनों, ऐसा जग, ऐसा लोटा, ऐसी बोतल से पानी ना पिए जो अंदर मौजूद है लेकिन वो बाहर से पानी उसका नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आमतौर पर जो पानी के बोतल मिलते हैं आज दुकानों में, उस पे पानी क्लियर नजर आता है। प्लास्टिक की बोतल में सफेद बोतल जो होती है वो क्लियर नजर आता है, लिहाजा उसको आप देखकर पी सकते हैं बॉटल से भी। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे जीवनों, तो पहली सुन्नत दाएं हाथ से पानी पीना, ये सुन्नत रसूल है। और दूसरी सुन्नत ये है कि पानी देख कर पिए, कहीं कहीं कचरा वगैरह ना हो, ज्यादा जितना भी जल्दी हो, लेकिन आप देखें गड़बड़ में ऐसा ये ना करे कि लिए पानी लगा दिए मुंह का, ऐसा नहीं, बल्कि पानी में सुकून से देख ले उसके बाद पिए, ये सुन्नत रसूल दूसरी सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत क्या है, पानी बैठ कर पिए। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि पानी बैठकर पिए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाते हैं, और आगे फरमाते हैं कि इससे जिगर की बीमारी होती है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए एक मुसलमान सरकार की हर सुन्नत पर सिर्फ सुन्नत है समझकर अमल करेगा, अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा, और उसमें उसकी सेहत का राज भी पोशीदा है, उसका जिस्म नुकसानात से बच जाएगा। लिहाजा बैठकर पानी पीने से जिगर की बीमारी से आप बच सकते हैं और सवाब भी मिलेगा। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे जीवनों, लिहाजा दुनिया का हर पानी बैठकर पिए, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि आबे जमजम का पानी हो या वजू का बचा हुआ पानी हो, उसको खड़े होकर पीना है। क्यों? आबे जमजम को अल्लाह के पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निस्बत हासिल है, लिहाजा इस पानी का मुकाम बुलंद हो गया, इसलिए उस पानी की ताज़ीम के लिए आबे जमजम को खड़े होकर पीना है। और वजू के पानी में उलमा फरमाते हैं नूरानियत आ जाती है, इसीलिए उस पानी को भी खड़े होकर पीना है। बाकी हर पानी को आप बैठ कर पिए, मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे जीवनों। और चौथी सुन्नत ये है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे जीवनों, खड़े होकर पानी पीने में जिस्म का इतना नुकसान है, इस नुकसान की वजह से अल्लाह के रसूल ताकीद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान गलती से भी अगर खड़े होकर पानी पी लिया है उसे ख़य कर देना चाहिए। लिहाजा ताकीद है, ये इतनी ताकीद करने का मकसद क्या है कि जो पानी खड़ा होकर पिया जाता है वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदा होता है, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस पानी को ख़य कर दो। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, और पांचवी सुन्नत क्या है, 3 सांस में पानी पीना। 3 सांस में पानी पीना, ऐसे है कि पानी पिए, सामने गिलास है, गिलास में आप सांस छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि एक बार पानी पिए,
गिलास को मुंह से हटा ले, दूसरे बार पानी पिए, गिलास को मुंह के बाजू से हटा ले, उसके बाद तीसरी सांस में जितना चाहे पी सकते हैं। लेकिन आप पी रहे हैं, गिलास सामने है, अपनी सांस उसी गिलास में छोड़ रहे हैं, तो मुंह से जो जरासीम निकलते हैं, हवा के जरिए, सांस की हवा के जरिए जो गंदे जरासीम निकलते हैं, फिर वो पानी, दूध, चाय जो भी पी रहे हैं उसमें शामिल हो जाएंगे, फिर वो जिस्म के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हर घूंट के बाद, हर सांस के बाद आप गिलास साइड में करें, फिर उसके बाद पानी पिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऊंट की तरह एक ही घूंट में पानी ना पियो। बाद लोग होते हैं मुसलमान, ठहरे, एक तो ठहर के पीता है, या अगर बैठ भी गया है या ठहर भी गया है, पानी जो का गिलास हो, जग हो, लगाता है, पूरा खत्म होने तक वो हटाता नहीं। तो ये ऊंट की तरह पानी पीना है। अल्लाह के रसूल सैयदुल अंबिया मना फरमाते हैं, ऊंट की तरह एक घुंट में पानी मत पियो, बल्कि कैसा पियो, 3 सांस में पियो। अगर गिलास बड़ी है, चाय या दूध गर्म है, आप 3 सांस में नहीं पी सकते, तो ज्यादा से ज्यादा सांसों में पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सांस में पीना ये सुन्नत रसूल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, और आखिरी जो सुन्नत है, छठी सुन्नत, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। जैसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना है, पानी खत्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, और अल्लाह के रसूल ने गर्म खाने में, गर्म दूध में, चाय में या पानी में, कोई भी गर्म पानी हो, गर्म चाय हो, गर्म दूध हो, गर्म खाना हो, इसमें फूंकने से मना फरमाया है। इसमें हरगिज मत फूंको। अब साइंसदानों ने तहकीक की, साइंसदानों को, यहूद और नसारों को बड़ी फिक्र है, इनके नबी जो हुक्म देते थे, आखिर ये हुक्म उन्होंने क्यों दिया, उस पर रिसर्च करते हैं। जब रिसर्च में वो हकीकत उनके सामने आ जाती है, इंसान का फायदा नजर आ जाता है, तो उनके पढ़े लिखे इस्लाम कबूल करते हुए नजर आते हैं। उनके पढ़े लिखे इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन हमारे जाहिल उनके यहूद नसारा के तरीके पर अमल करते हैं, बाएं हाथ से पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं। लिहाजा हम मुसलमान हैं, सरकार की सुन्नत पर अमल करना है। तो पानी में फूंकने से नुकसान क्या है, साइंसदानों ने तहकीक किया तो मालूम हुआ, इंसान के पेट में कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो अगर पेट में रहे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वही जरासीम सांस के जरिए, मुंह से हवा के जरिए, अगर सामने आप जो भी पानी पी रहे, दूध पी रहे, चाय पी रहे, खाना खा रहे, अगर आपने फूंक मारी, तो वो जरासीम वो आपके मुंह से निकलने वाली हवा से उस चीज में शामिल हो जाते हैं जो चीज आप पी रहे हैं, फिर वो दोबारा पेट में जाते हैं, तो इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ बीमारियां इंसान को लग सकती हैं, मुब्तला हो सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आखिरी बात यह है कि इंतहाई ठंडा पानी, फ्रिज का पानी आप हरगिज इस्तेमाल ना करें, या बर्फ का पानी हरगिज इस्तेमाल करें। हद से ज्यादा ठंडा पानी, फ्रिज का हो, बर्फ का हो, इंसान की सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप थोड़ा ठंडा पानी पिए, मोतदल पानी पिए। आमतौर पर गर्मा के दिनों में, अब जैसे आने वाला रमजानुल मुबारक है, उसमें लोग इंतहाई बर्फ का पानी या फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी पीते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा है, इसलिए आप मोतदिल पानी पिया करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आज की मुख्तसर वीडियो में मैंने पानी पीने का सुन्नत तरीका भी बताया है, और सुन्नत तरीके पर पानी पीते हैं तो फायदा क्या है वो भी बताया है, सवाब भी मिलेगा, इबादत में भी शुमार होगा। लेकिन अगर खिलाफ सुन्नत पानी पीते हैं तो क्या क्या नुकसान है मैंने वो भी बता दिए हैं। लिहाजा हम सरकार की सुन्नत है समझकर अगर पानी भी सुन्नत तरीके पर पिएंगे तो एक तो इबादत का सवाब मिलेगा, और दूसरे इंसानी जिस्म नुकसान से बच जाएगा। मैं तमाम सामाईन नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल उन नाज़रीन से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को सब्सक्राइब फरमा ले। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इससे आपके इल्म दिन में कुछ इजाफा हो रहा है, तो आप इसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।